میری طرف سے جانی ٹی وی دیکھنے والے سبھی معزز دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو جنوب مشرقی ایشیا میں دنیا کے تیسرے بڑے جزیرے بورنیو پر واقع معدنی دولت سے مالا مال ایک چھوٹے سے مگر بے حد خوبصورت ملک برونائی دارالسلام کی سیر کرواؤں گا۔ جی ہاں، یہ وہی برونائی ہے جس نے دنیا کے نام نہاد ٹھیکیداروں کے ہزار بار منع کرنے کے باوجود بھی اپنے ملک میں اسلامی سزاؤں کا انعقاد کر دیا۔ ساری اسلامی دنیا دیکھتی رہ گئی اور برونائی بازی لے گیا۔ سلطان حسن البولکیہ، جن کا شمار دنیا کے امیر ترین افراد میں ہوتا ہے، سونے کے ہوائی جہاز، سینکڑوں کاریں اور بے شمار قیمتی اشیاء کے مالک، جن کی زندگی پر ہم پہلے ہی ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل آئی اسٹوڈیو پر آپ لوگوں کو دکھلا چکے ہیں۔ اگر آپ دوستوں نے ابھی تک سلطان حسن البولکیہ کی زندگی پر بنائی گئی وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک دیا گیا ہے، آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل جانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس چینل کو بھی جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیجئے تاکہ تمام سیر و سیاحت پر مبنی ویڈیوز آپ کو جلد سے جلد موصول ہو سکیں۔ دوستو، برونائی کی تاریخ کے بارے میں جانیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس جزیرے یعنی اس ملک میں لوگوں کا بساؤ 682 عیسوی میں ایک بدھسٹ ریاست سری وجایا کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ اس وقت اس جزیرے بورنیو کو پونی کہا جاتا تھا، جو آج 3 ممالک کے درمیان بٹا ہوا ہے۔ 12ویں صدی میں اس ریاست نے پھیلنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 1225 میں ایک چینی نمائندے نے اپنے ملک میں یہ اطلاع بھیجی تھی کہ اس جزیرے پر 1000 بحری جہاز حفاظت کے لیے موجود ہیں۔ اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ تو نہیں معلوم، لیکن اگر ہم اس خطے میں موجود معدنی دولت کا اندازہ لگائیں تو اس بات سے انکار کرنا بھی ممکن نہیں ہے کہ اس ریاست کی حفاظت کے لیے بحری جہاز کھڑے ہوں گے، کیونکہ اس جزیرے پر سونے چاندی کی بہتات تھی۔ 13ویں صدی کے دوران ہی پونی کو ماجا پہاڑ کی ریاست کی ذیلی ریاست بنا دیا گیا۔ اس عرصے کے دوران اسلام اس خطے میں پھیل چکا تھا۔ مقامی مالے اور چائنیز آبادی نے اسلام سے متاثر ہو کر اپنا مذہب اسلام تبدیل کر لیا اور یوں اس جزیرے پر بیشتر قبیلے مسلمان ہو گئے۔ اسلام اس خطے میں چین، عرب اور بھارتی گجرات سے آنے والے تاجروں کے حسن سلوک کی بدولت پھیلا تھا۔ 1457 میں سید ابو بکر ابیرن یعنی شریف الحشام نے ایک اسلامی سلطنت کی بنیاد اس خطے میں رکھی۔ اس سلطنت کو بحیرہ سولو کے نام پر سولو سلطنت کہا جانے لگا۔ اس سلطنت نے آنے والے وقتوں میں کئی نام بدلے، محل وقوع بدلا، مگر کوئی طاقت اس سلطنت سے اسلام کا خاتمہ نہ کر سکی۔ 1578 میں ایک ہسپانوی سیاح الفونسو بیلتران نے اپنے سفر کے دوران بورنیو جزیرے پر ایک 5 منزلہ عمارت دیکھی۔ اس نے واپس اپنے ملک جا کر اس علاقے کے بارے میں بتلایا۔ یہ وہ دور تھا جب اسپین سے اسلام کا خاتمہ ہو چکا تھا، مگر ہسپانوی سلطنت اپنے عروج پر تھی۔ ہسپانوی فرمانرواؤں نے اسپین سے 400 فوجیوں کو وہاں بھیجا، جنہوں نے 300 کے قریب غدار بورنیو جبکہ 1500 نوجوانوں کو فلپین سے بلوا کر اچانک سے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قبضہ تو بہت جلد ختم ہو گیا، لیکن اس کے بعد ایک ایسی خانہ جنگی نے جنم لیا جس کا اختتام کئی سالوں بعد 1673 میں ہوا۔ برونائی کے 23ویں سلطان عمر علی سیف الدین دوئم کا دور حکومت تھا جب ان کے خلاف بغاوت ہونے لگی۔ ان کے خلاف بغاوت کی وجہ برطانوی اور امریکی کمپنیوں کا بار بار سلطنت کے چکر لگانا بنی۔ ایسے میں ایک برطانوی مہم جو جیمز بروک کا 1839 میں برونائی کا سفر ہوا۔ اس نے وہاں پہنچ کر بادشاہ کے خلاف ہونے والی ہر بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس کام میں سلطان کی مکمل حمایت بھی اسے حاصل ہو چکی تھی۔ بدلے میں سلطان نے اسے سراواک ریاست کا راجہ بنا دیا۔ تاریخ میں آج بھی جیمز کو راجہ آف سراواک یا وائٹ راجہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جیمز کو راجہ بنانا دراصل برطانیہ کو سلطنت میں جگہ دینا ایک بات ثابت ہوئی۔ جیمز نے کئی عہدوں پر برطانوی افسر تعینات کرنے شروع کر دیے۔ برطانوی ملکی معاملات میں مداخلت کرنے لگے۔ جولائی 1846 میں تو برطانوی حکومت نے باقاعدہ طور پر برونائی پر حملہ بھی کر دیا۔ 1888 میں دونوں ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس میں یہ واضح کیا گیا کہ سلطان برطانیہ کی مرضی کے بغیر اپنی زمین کسی غیر ملکی کو نہیں دے سکتا۔ 1906 میں ایک دوسرا معاہدہ ہوا جس کے بعد برطانوی باشندے اس ملک میں آباد ہونے لگے۔ معاہدے کے مطابق بادشاہ کو انہیں مشیر بنانا پڑا۔ وقت گزرتا گیا اور یہ لوگ بادشاہ سے زیادہ طاقتور ہوتے گئے۔
कई नाकाम कोशिशों के बाद 1929 में इस मुल्क से तेल दरियाफ्त हुआ। 40 की दहाई में ब्रुनाई पर जापानियों ने हमला कर दिया। बरतानिया को हमले का अंदेशा तो था, मगर उन्होंने मज़ाहमत ना की। जापानियों ने सुल्तान के तख्त को भी बरकरार रखा, जबकि सुल्तान को पेंशन और एजाज़ात से भी नवाजा गया। जापान ने सरकारी स्कूलों में जापानी ज़ुबान लाजम कर दी और मुकामी करेंसी को ख़त्म करते हुए अपनी करेंसी मुतारफ़ करवा दी। 1945 में दूसरी जंग अजीम के मौका पर जापान ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए और यूं इस मुल्क पर बरतानवी, अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई अफवाज का कब्जा हो गया। अमरीकी बरतानिया से एक मुआहदे के तहत यहाँ से चले गए। अगले साल 1946 में बरतानिया इस मुल्क को छोड़कर चलता बना, मगर बरतानवी फौज में कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लेने की गर्ज से आने वाले ऑस्ट्रेलियाई फौजियों को साथ मिलाकर एक फौजी हुकूमत कायम कर ली। इस दौरान ब्रुनाई को खुद मुख्तारी हासिल थी, मगर वो बरतानवी अफवाज के मातहत समझे जाते थे। 1967 में सुल्तान हसन अल बोल्किया मुल्क के सुल्तान मुंतखब हुए। 1959 में एक मुआहदा हुआ जिसके बाद दफा और खारजा अमूर बरतानिया के पास थे, बाकी सब कुछ ब्रुनाई को दे दिया गया। ताहम सुल्तान ने आज़ादी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखी। 1971 में सुल्तान हसन अल बोल्किया बरतानिया गए और 1959 में किए गए मुआहदे में तब्दीलियां करवाईं। ये वो दौर था जब दुनिया में इस्लामी हुक्मरानों की बात ज़्यादा सुनी जा रही थी। तमाम इस्लामी ममालिक ने ब्रुनाई का साथ दिया और ब्रुनाई से ताल्लुकात कायम कर लिए। 1983 की आखिरी रात ब्रुनाई की हर मस्जिद में लोगों का हजूम था। रात भर मसाजिद में खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया। 1984 की पहली सुबह नमाज फजर से पहले सुल्तान ने मुल्क की आज़ादी की खबर सुनाकर सबको हकीकी आज़ादी की नेमत से नवाजा। आज़ादी के बाद मलेशिया और ब्रुनाई के दरमियान सिंगापुर के मामले में इख्तलाफात थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ब्रुनाई को बाकायदा तौर पर तस्लीम तो कर लिया, मगर सफारती ताल्लुकात कायम नहीं किए। इसी माह यानी जनवरी 1984 में मलेशिया के ब्रुनाई से ताल्लुकात सही हो गए। दुनिया के काफ़ी सारे ममालिक ब्रुनाई की आज़ादी को तस्लीम कर चुके थे। अगले माह 9 फरवरी 1984 के रोज़ पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर ब्रुनाई से सफारती ताल्लुकात कायम कर लिए। भारत ने 10 मई के रोज़ ब्रुनाई से अपने ताल्लुकात कायम किए, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानब से सितंबर 1984 में ब्रुनाई को रुकन बनाया गया था। ब्रुनाई ने आज़ादी 1 जनवरी को हासिल की, मगर 23 फरवरी को एक अजीमुशान महफल का इनेकाद किया गया। गर्म मौसम में लोगों का इस कदर हजूम देकर सुल्तान ने कौमी दिन 1 जनवरी की बजाय 23 फरवरी मुंतखब कर दिया और तब से लेकर आज तक 23 फरवरी का दिन ही कौमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ब्रुनाई को सरकारी तौर पर दी नेशन ऑफ ब्रुनाई, दी अडॉब ऑफ पीस कहा जाता है। माले ज़ुबान में इस मुल्क का नाम नगारा ब्रुनी दारुसलाम लिया जाता है, जबकि दुनिया के ज़्यादातर ममालिक ब्रुनाई या ब्रुनाई दारुसलाम लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ब्रुनाई के बारे में अगर दिलचस्प हक़ाइक़ की बात की जाए तो 2011 में IMF की जानब से एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि दुनिया में ब्रुनाई और लीबिया 2 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने कभी भी कर्जा नहीं लिया, बल्कि ये ममालिक दुनिया के 10 ममालिक को कर्ज फराहम कर चुके हैं। दोस्तों, ब्रुनाई कुल 6 जजीरों से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। ज़्यादातर आबादी बोर्नियो जजीरे पर 2 मुख्तलिफ मुकामात पर बसी हुई है। मुल्क का कुल रकबा 5765 मरबा किलोमीटर है। अपने रकबे के एतबार से इस मुल्क का दुनिया भर में 163वें नंबर पर शुमार होता है, यानी ये मुल्क लाहौर से तकरीबन 3.5 गुना बड़ा, जबकि कराची शहर से दुगना भी नहीं है। इस मुल्क की आबादी 4,21,300 अफराद पर मुश्तमिल है। आबादी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 168वें नंबर पर होता है। यानी इस मुल्क की आबादी का अंदाज़ा आप यूं लगा लीजिए कि पाकिस्तान के शहर जंग या रहीम यार खान से मिलती जुलती इस मुल्क की आबादी है। इस मुल्क की 82.70% आबादी मुसलमान है। मुल्क का कौमी मजहब भी इस्लाम माना जाता है, जबकि मुल्क में बाकी तादाद में ज़्यादा बुद्धिज़्म के मानने वाले, जबकि थोड़ी सी तादाद मसीही बरादरी की भी पाई जाती है। 1% के करीब हिंदू और दीगर कदीम मज़ाहब के मानने वाले भी इस मुल्क में आबाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में एक साहिल किनारे आकर कुछ कबीलों ने अपनी बस्तियां बसाई थीं। माजी में ये बस्तियां कस्बे की शक्ल इख्तियार कर गईं और इसे नाम मिला ब्रुनाई टाउन का। फिर जब ये शहर बना तो इस शहर का यही नाम रहा, लेकिन 1970 में इस शहर का नाम तब्दील करके बंदर सिरी बगवान रख दिया गया।
शहर के नाम का पहला हिस्सा फारसी लफ्ज़ बंदर का है, जिसका मतलब बंदरगाह है। दूसरा लफ्ज़ संस्कृत का है, जिसका मतलब है बख्शा हुआ। आज ये शहर 100 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। शहर की आबादी 65,000 अफराद के करीब है। इस शहर को मुल्क का दारुल हुकूमत होने के साथ साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का भी एजाज़ हासिल है। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर क्वाला वलायत है, जिसकी आबादी महज 30,000 अफराद है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिन्हें ब्रुनाई के 29वें सुल्तान होने का एजाज़ हासिल है, थाईलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब के बादशाह के बाद दुनिया के चौथे अमीर तरीन बादशाह होने का एजाज़ अपने नाम रखते हैं। ब्रुनाई, जहां पर तालीम मुफ्त, सेहत की तमाम सहूलियात मुफ्त, ना आमदनी पर इनकम टैक्स, ना घर बनाने की परेशानी, हत्ता कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं तो आपके खाने तक का खर्चा भी हुकूमत उठाती है। एक ऐसा मुल्क जो शहरियों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। दुनिया के सबसे महफूज ममालिक में शुमार होने वाले इस मुल्क में लोगों की औसतन उम्र 79 साल है। तालीम की शरह इस मुल्क में 96.7% के करीब है। ब्रुनाई कार ओनरशिप के हवाले से दुनिया में पहले नंबर पर आता है, यानी इस मुल्क में हर 2 आदमियों के पास एक के पास ज़रूर कार होगी। यानी हम यूं कहें कि इस मुल्क की आधी आबादी के पास कारें हैं तो आपको समझने में आसानी रहेगी। दुनिया में आबादी के हिसाब से कोई ऐसा मुल्क नहीं जिनके पास इतनी कारें हों। बेलालोंग ट्री फ्रॉग दुनिया का वाहिद ऐसा मेंढक है जो सिर्फ और सिर्फ इसी मुल्क में पाया जाता है। ये मेंढकों की कई इकसाम में से एक ऐसी किस्म है जो पानी में कम और दरख्तों पर रहना ज़्यादा पसंद करती है। तकरीबन 49.5 एकड़ रकबे पर फैला हुआ सुल्तान का महल दुनिया की सबसे बड़ी रहायशगाह है, जो इस वक्त 1788 कमरों, 257 बाथरूमों, 5 स्विमिंग पूल्स, 1 गिराज, 1 मस्जिद और 1 बाग के साथ सजा हुआ है। एक छोटा सा शहर जहां दुनिया की हर चीज़ दस्तयाब है। दुनिया की महंगी तरीन कारें और महंगे तरीन घोड़े भी इसी महल में मौजूद हैं। एक वक्त में इस महल में 5000 मेहमानों के सुलाने की जगह भी मौजूद है। सुल्तान हसन अल बोल्किया, जिनकी आमदनी में हर रोज़ तकरीबन 1 अरब से ज़ायद पाकिस्तानी रुपयों का इजाफा हो रहा है, जिनकी कुल आमदनी 20 अरब डॉलर से भी ज़ायद है। अगर चाहें तो कई ममालिक की किस्मत संवार सकते हैं। दुनिया में 1997 के बाद से एक ऐसा सूप कई ममालिक में बहुत मकबूल हुआ, जिसे बनाने के लिए शार्क मछली के पर काट लिए जाते थे। ब्रुनाई दारुसलाम एशिया का वो पहला मुल्क बना जिसने 2013 में शार्क फिनिंग यानी शार्क मछली के पर काटने पर पाबंदी लगा दी थी। फुटबॉल ब्रुनाई की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल के अलावा पोलो, हॉकी और ओलंपिक्स की चंद खेलें इस मुल्क में ज़्यादा शौक से खेली जाती हैं। +673 इस मुल्क का कंट्री कोड और .bn इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। इस मुल्क की कुल GDP 36.8 बिलियन डॉलर है। 83,776 US डॉलर के साथ फीकस मजमूई आमदनी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया के चौथे अमीर मुल्क के तौर पर होता है। इस मुल्क की करेंसी को ब्रुनाई डॉलर कहा जाता है। 1967 के बाद से इस मुल्क में इस करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। $1 103 पाकिस्तानी रुपयों जबकि 51 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। ब्रुनाई पाकिस्तान से 5,546 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। वक्त के लिहाज से यह मुल्क पाकिस्तान से 3 घंटे आगे है। इस्लामाबाद में मौजूद ब्रुनाई की एम्बेसी से आप वहां का वीज़ा लेकर ब्रुनाई में दाखिल हो सकते हैं। इस मुल्क में कामकाज की गर्ज से जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद बहुत ही कम है, इतनी कम कि 500 अफराद से भी कम पाकिस्तानी इस मुल्क में मुकीम है। मुल्क का दर्जा हरारत औसतन 26 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। साहिलों के करीब मौसम गर्म और मुअत्तिल रहता है, जबकि कुछ इलाकों में तो गर्मी इंतहा को भी पहुंच जाती है। इस मुल्क के 2 हिस्से हैं, दोनों एक दूसरे से अलग थलग हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक वक्त में मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान हुआ करता था। यानी ब्रुनाई के दोनों हिस्सों के दरमियान मलेशिया की सरजमीन वाक़या है। मलेशिया से इस मुल्क की 381 किलोमीटर की सरहद मिलती है, जबकि बाकी इतराफ में साहिल समुंदर वाक़या है। शराब नोशी इस मुल्क में ममनू है। गैर मुल्की अपने साथ 2 लीटर से ज़ायद अल्कोहल नहीं ला सकते। जना पर मौत की सज़ा, चोरी पर हाथ काटना, तौहीन रसालत की सज़ा मौत, हम जिन्स परस्ती पर संसारी,
یہ وہ سب سزائیں ہیں جن کا اطلاق حال میں ہی برونائی کے شہریوں پر لاگو ہو چکا ہے۔ برونائی کے سلطان کا کہنا ہے کہ ان سزاؤں کے بعد برونائی دنیا کا وہ ملک بنے گا جہاں پر جرائم 0% ہو جائیں گے۔ مالے اس ملک کی قومی زبان ہے، جبکہ انگریزی بولنے والے اور سمجھنے والوں کی ایک کثیر تعداد اس ملک میں مقیم ہے۔ چائنیز، عربک اور دوسن زبان بولنے والوں کی تعداد بھی اس ملک میں مقیم ہے۔ برونائی کے سلطان اس وقت وزیر دفاع، وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے عہدے پر فائز ہیں۔ وائٹ بلیڈ سی ایگل اس ملک کا قومی پرندہ ہے۔ سیمپور کا پھول اس ملک کا قومی پھول ہے۔ دوستو، برونائی پر بنائی گئی ہماری یہ ویڈیو آپ دوستوں کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے واٹس ایپ اور فیس بک وال پر اپنے فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ لازمی طور پر شیئر بھی کیجیے گا۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ آپ دوستوں سے ملاقات ہوگی ایسی ہی کسی معلوماتی ویڈیو کے ذریعے۔ تب تک کے لیے اپنے اس دوست محمد نبیل کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔